Hi everyone, we are back with previous year questions of CSIR NET Chemical Sciences, and in this video I am going to solve a 2-marker question of coordination compounds which was asked in CSIR June 2018 examination. So the question is that the high spin complex of 3D metal ion has magnetic moment value of 2.9 Bohr magnetons in octahedral coordination environment and 4.1 Bohr magnetons in tetrahedral coordination environment, and we have to identify that which metal is this. Okay, so first option we have, so first of all you all know that the magnetic moment value, the magnetic moment in complexes, it arises because of spin motion of the electron and also because of the orbital motion of the electrons, right? So here I have written with the mu spin values of the magnetic moments which depend on the number of unpaired electrons present, right? तो अगर हमारे पास number of unpaired electrons 0 होंगे तो उसके corresponding जो हमारे पास magnetic moment है जो सिर्फ spin की value पे depend करता है, that is 0, and if the number of unpaired electrons are 1, then the value of magnetic moment arising because of the spin motion of the electron will be 1.7 and so on. बट स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो हम तभी इंक्लूड तभी और सिर्फ तभी करते हैं जब ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन का क्वेंच हो जाता है. अगर कोई ऐसा केस होता है जिसमें हमारे पास ऑर्बिटल मोशन भी इंक्लूड हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो उस टाइम पर जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है दैट कम्स बिकॉज ऑफ स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, राइट. और ये कब होता है जब हमारे पास T2 सेट जो है T2G सेट ऑफ ऑक्टाहेड्रल एनवायरमेंट एंड T2 सेट ऑफ टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट व्हेन इट इज अनसिमेट्रिकली फिल्ड, राइट. तो हमें क्या देखना है कि हमारे पास ये जो 4 ऑप्शंस है इनमें से कौन सा मेटल आयन ऐसा होगा जिसका ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में 2.9 बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एंड टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में 4.1 बोहर मैग्नेटॉन वैल्यू आएगी. तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में वी हैव कोबाल्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3d6, एंड अगर हमारे पास ये ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसी होगी T2G4 Eg2. तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, वी हैव 4 electrons in T2G set and 2 electrons in the Eg set, right? So number of unpaired electrons in this case will be 2. अब क्योंकि हमारे पास इस केस में we have how many the T2G set, we can see that this is unsymmetrically filled, right? So if this is unsymmetrically filled तो इसका मतलब अगर आपके पास number of unpaired electrons 2 है और उसके corresponding spin में आपके पास mu spin value कितनी आनी चाहिए 2.8 बोहर मैग्नेटॉन, क्योंकि number of unpaired electrons 2 है, but it won't be 2.8 बोहर मैग्नेटॉन्स या 2.9 बोहर मैग्नेटॉन्स. Why? Because इसमें T2G set unsymmetrically filled है, तो that means इसमें कुछ ना कुछ orbital contribution भी होगा और हमारे पास जो mu value आएगी that will be greater than 2.9 or 2.8 Bohr magneton. Why? Because this time we are not going to include only the spin formula, only the spin magnetic moment, since the T2G set is unsymmetrically filled. Here there will be orbital contribution also present in the magnetic moment. तो हमारे पास तो आंसर आना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में 2.9 बोहर मैग्नेटॉन्स, बट क्योंकि T2G सेट अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो ऑर्बिटल जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू 2.9 से ज्यादा आएगी, तो दैट मींस ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता. नेक्स्ट वी हैव निकल व्हिच इज प्रेजेंट इन +2 oxidation state. So first we are going to check what will be the magnetic moment corresponding to this ion in octahedral environment. Nickel +2 means we have electronic configuration 3d8, right? If this is present in octahedral environment, then we will have T2G6 Eg2 इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट. क्योंकि हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स गिवन है तो हम हाई स्पिन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे T2G सेट और Eg सेट में. तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, n वैल्यू विल बी 2. तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास T2G सेट सिमेट्रिकली फिल्ड है तो इसमें कोई भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं आ सकता. तो इसका मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो सिर्फ म्यू स्पिन की वैल्यू जो है वही हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी. ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यहाँ हमारे पास हो जाएगी 2.8 और 2.9 बोहर मैग्नेटॉन वी कुड से. तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में निकल +2 हमें 2.9 बोहर
मैग्नेट्रॉन्स मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू देता है। नेक्स्ट, अगर इसको हम टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में रखते हैं तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज D8 सिस्टम, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, E4T2 4, राइट। तो here in this case we will have how many number of unpaired electrons? We are going to have 2 number of unpaired electrons, right? N value will be 2, but क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो T2 सेट है that is unsymmetrically filled, इसका मतलब 2 के corresponding म्यू स्पिन वैल्यू कितनी है, 2.8 बोहर मैग्नेट्रॉन्स, बट हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उसमें अब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी आएगा, क्योंकि T2 सेट अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सिर्फ 2.8 बोहर मैग्नेट्रॉन्स नहीं रहेगी, इससे थोड़ी ज्यादा आएगी। तो दैट मींस म्यू वैल्यू इन दिस केस विल बी ग्रेटर देन 2.8 बोहर मैग्नेट्रॉन्स। ग्रेटर है, कितना ज्यादा होगा इससे वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इट माइट बी 4.1 बोहर मैग्नेट्रॉन ऑल्सो, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 2.8 बोहर मैग्नेट्रॉन। सो दिस कुड बी द प्रोबेबल आंसर, ठीक है। इसके बाद हम अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें, इसमें हमारे पास कॉपर प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट मींस द सिस्टम इज D9 सिस्टम। D9 सिस्टम चाहे आप ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में रखो चाहे टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में रखो, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 1 आएंगे। और हमारे पास अगर हम ऑक्टाहेड्रल सेट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो T2G है दैट विल बी सिमेट्रिकली फिल्ड, वेयरएज E विल बी अनसिमेट्रिकली फिल्ड। तो हमारे पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि T2G सेट हमारा सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग म्यू वैल्यू जो n = 1 के बराबर आती है वही आएगी, दैट इज 1.7 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो अगर ये ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में हम कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन को रखते हैं तो वो मैग्नेटिक मोमेंट देता है 1.7 बोहर मैग्नेट्रॉन्स, बट हमें वैल्यू कितनी चाहिए, 2.9 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो दैट मींस ये भी ऑप्शन जो है आपके पास दैट इज इनकरेक्ट। Last option में we have cobalt which is present in +2 oxidation state. So that means we have 7 electrons present in the d orbital. It will be 3d7. तो अगर आप इसको octahedral field में रखते हो तो हमारे पास electronic arrangement high spin complex है, तो electronic arrangement will be T2G5 Eg2. So in this case we have 5 electrons in T2G set and we have 2 electrons in Eg set. Number of unpaired electrons are coming out to be 3 और 3 के corresponding म्यू स्पिन फॉर्मूला में वैल्यू कितनी है, 3.8 बोहर मैग्नेट्रॉन्स, बट हमें वैल्यू ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में कितनी चाहिए, दैट इज 2.9 बोहर मैग्नेट्रॉन्स। तो दैट मींस आपके पास यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी ग्रेटर देन 3.8 बोहर मैग्नेट्रॉन्स। व्हाई, बिकॉज अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 है, म्यू स्पिन वैल्यू 3.8 है, बट T2G सेट अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी आएगा और जो आपके पास ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी ग्रेटर देन 3.8 बोहर मैग्नेट्रॉन्स, which means 2.9 तो नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी आपके पास इनकरेक्ट है। सो द आंसर इज निकल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ 2.9 बोहर मैग्नेट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट and it will have 4.1 bohr magnetron in tetrahedral environment, which is because of spin orbital coupling since the T2 set in this case will be unsymmetrically filled. So that's all for this question. This was asked in June 2018 examination and it carried 2 marks.